नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक गवर्नमेंट स्टॉक के बारे में। और गवर्नमेंट स्टॉक में छोटा मोटा स्टॉक नहीं, बड़ी स्टॉक है। और बड़ी स्टॉक में देखा जाए तो स्टॉक करती क्या है, उसके बारे में एक नज़र हम इसके पीछे की रिव्यू पर देख लेते हैं। providing cost-effective solutions through continuous innovations, understanding social responsibility. A company. BEML, reaching new frontiers, fulfilling new dreams. BEML Limited, scheduled in public sector undertaking under Ministry of Defence, Government of India, was incorporated in 1964. The company has ISO 9001, 2015 and ISO 14001, 2004 certified production, state-of-the-art manufacturing facilities at Bangalore, Kolar Goldfields, Mysore and Palakkad. Manufacturing defense, mining and construction equipment, and rail and metro products for the national and international markets. BEML is a leading defense equipment manufacturer in high mobility vehicles and specialized military equipment for the Indian Defense Forces. BEML continues to play a crucial role in the country's integrated guided missile development program by providing missile launching platforms and ground support vehicles. BEML equipment are operating in difficult terrains and extreme weather conditions, providing vital battlefield mobility to Indian armored formations. The equipments and vehicles manufactured go through various rigorous tests at its world-class testing tracks. The Aerospace Division, located at Mysore, has ultra-modern manufacturing facilities for missile casings and ground support vehicles. BEML is one of the leading manufacturers of mining and construction equipment manufactured at its state-of-the-art manufacturing facilities. BEML has supplied over 30,000 diverse range of mining machineries and produces high-end machines such as hydraulic excavators, bulldozers, wheel loaders, water sprinklers, dump trucks, motor graders, pipe layers, tire handler, and also products like side discharge loader and load haul dumpers. BEML, the first rail coach manufacturing company of the nation, has supplied over 17,000 mainline passenger coaches of various types and over 800 electrical multiple units or EMUs to the Indian Railways for mainline and suburban routes. BEML is the only Indian company to manufacture high-tech world-class metro cars, supporting the Make in India initiative of the Government of India. More than 1,500 metro cars have been supplied to metro corporations in Delhi, Bangalore, Jaipur, and Kolkata. Additionally, BEML is executing order for Mumbai Metropolitan Region Development Authority. BEML has a full-fledged R&D center accredited by MEBL at Kolar Goldfields and Mysore, with facilities for designing, simulating, and testing. In-house R&D and proactive indigenization
other cornerstones of the company's business strategy, which are being leveraged in full measure. This has helped BEML to establish itself as a leading player in all its business segments despite stiff competition from multinational corporations. Having a wide service network nationally and internationally, BEML stands out as a bumper-to-bumper, one-stop shop for erection and commissioning, condition-based monitoring, maintenance and repair contracts, and midlife overhauling for major mining equipment, considered the best in the industry. BEML is marching towards a fully green company using 100% renewable energy through its windmill and solar energy units, thereby reducing carbon footprint. With major market share, the clientele of BEML include reputed companies across various industry verticals. As a responsible corporate, BEML has been constantly striving to pay back society by its CSR initiatives, which include adoption of villages, rehabilitation of persons with disabilities, providing education through schools to local population, tree plantation, installing solar and LED lightings, modular scheme for training youth and women for skill development. BEML is fully dedicated to the Swachh Bharat campaign of the Union government. BEML has won various awards for its quality products and social initiatives, which include innovative HR policies and an enlightened and engaged workforce of the company have been contributing immensely to the success of the organization and its business. Various skill development initiatives are being undertaken by the company to contribute towards Skilling India. In addition, centers of excellence have been set up to build requisite skills which are of critical importance to the company's operations. BEML First, the value statement of the company, that is, focus on customer, innovation, and technology. Reliability and quality. Speed and responsiveness, and trust and teamwork defines the culture and beliefs of the company. With world-class R&D facilities, cost-effective range of equipment, highly skilled workforce, extensive customer base, wide service network, and focused social initiatives, BEML is committed to nation building. BEML चलिए दोस्तों, अब हम जिसका जाने इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमने जान लिया, आपको हमने लंबा सा टाइम ले लिया। बाकी कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने साझा किया है, हमने उसी इन्फॉर्मेशन को आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब चलते हैं इसके डेटा के बेसिस पे जो क्या-क्या करती है कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में और समझने में कितना लगता है हमने काफ़ी लंबा टाइम ले लिया। अब चलने का प्रयास करते हैं इसके पीछे और क्या कहती है इस कंपनी के लेटेस्ट अपडेट के थ्रू। और कंपनी के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले देखिए इसके परफॉर्मेंस लेवल, वहाँ पे स्टॉक मार्केट की तरफ चलते हैं और स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस लेवल क्या कहती है। 5 साल में करीब 574% की जंप कर चुकी है और नियरली देखा जाए 1 साल में 217%, 6 महीने में देखा जाए तो स्टॉक की तरफ से 62% की जंप और 1 महीने में करीब 26% के आसपास जंप और 5 दिन में लगातार जंप ही जंप चलती नज़र आई है स्टॉक में, लगातार चलती नज़र आती है। तो चलिए इसको जानने वाले हैं इसका फंडामेंटल, बाकी सारी चीज़ों। तो चलिए करंट मार्केट प्राइस को छोड़ के इन 3 फैक्टर को लेना का प्रयास करेंगे। पहला इज़ अ फंडामेंटल, दूसरा इज़ अ टेक्निकल, तीसरा इज़ अ सेंटिमेंटल।
सेंटिमेंटल फिलहाल क्या कहता है स्टॉक को लेकर के, और फंडामेंटल क्या दर्शाता नजर आता है। टेक्निकल चार्ट की चर्चा करेंगे सबसे लास्ट में आज। तो करंट मार्केट प्राइस को छोड़िए, बुक वैल्यू कहता है 641 का, इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है 598 रुपये का, सॉरी। और इसके बाद देखा जाए स्टॉक की पी, जो कि बेसिकली कुछ नहीं है, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखा जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस में यदि अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाती है स्टॉक की पी। कई बार स्टॉक की पी आपको बड़ा भी देखने को मिला, कई बार छोटा देखने को मिला, क्योंकि ये डिपेंडेंसी कहाँ से होती है, ये डिपेंडेंसी इन द ईपीएस से, और ईपीएस की डिपेंडेंसी होती है प्रॉफिट से। इसके लिए इसका अलग अलग फार्मूला बेसिस होता है, जिसके लिए देखा जा सकता है कि शेयर नंबर ऑफ शेयर से प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट से नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड करेंगे तो फिर निकल के आती है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। और इसके तरफ देखा तो क्या करती है कंपनी के बारे में, इंट्रिंसिक वैल्यू के देखा जाए तो उस हिसाब से मार्केट अच्छी खासी बुलिश है। इसका जो हमने फिलहाल कुछ इसका वीडियो देख रहे थे, उसमें लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा गया था कि हमने क्या कितना पोटेंशियल लेके आती है मार्केट को लेकर के। डेट टू रेशियो कुछ भी नहीं है, जीरो है। नियर अबाउट करंट रेशियो भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो उनके पास थोड़ा सा है, तो फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्रमोटिंग होल्डिंग कहती है 54% के आसपास, और पब्लिक ने कोई प्रमोटर को नहीं कोई प्लेस नहीं किया। अच्छी बात है, क्योंकि सरकार क्यों प्लेस करेगी किसी कंपनी के शेयर को लेकर के। आरओसी कहती है 15.2, आरओसी कहते हैं 11.1, और फेस वैल्यू है 10 रुपये का। डिविडेंड टेल की बात करें तो निकल के आती है 0.20% के आसपास। अभी तक में टॉप कहाँ तक पहुंचा था, 54-5500 तक पहुंचा था। नियरली 1500 से देखा जाए तो 1500 से लेकर के 55 तक का स्टॉक है। नियर अबाउट तो कितना होता है, नियर अबाउट 3.5-4 टाइम्स के आसपास का कारोबार करती नजर आई। कहाँ से, स्टॉक प्राइस को लेकर के। एक नज़र डालते हैं इसकी हम बैलेंस शीट और पीएल को कंपेयर करने के लिए, और वो क्या कहती है, जिस हिसाब से वहाँ डेटा था उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि डेटर्स जो वर्सेस सेल्स रेशियो है, तो सेल्स के बेसिस पे 35% का इसका डेटर पड़ा हुआ है, और जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट के 3 गुना से ज़्यादा इनका क्या है, डेटर्स पड़ा हुआ है। डेटर्स की डे इनका 130 दिन का टाइम फ्रेम है, और मार्केट के बारे में आपको पता है, जो करंट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो मार्केट कैप निकल के आ जाती है। तो यदि इनकी स्टॉक पी को कंपेयर करके देखें इंडस्ट्रियल पी से, तो उसके हिसाब से देखा तभी भी मार्केट में इसके पोटेंशियल और बनती नजर आती है। जहाँ पे 75 है, यहाँ पे 92 है, तो नियरली लगता है कि 25% तो और इसका जंप करती ही नजर आएगी। और यदि 25% जंप करती है तो 5000 का 25% देख लीजिए कितना होता है, 1250-1400 के आसपास की और जंप कर सकती है मार्केट। यहाँ पे 6,500-7,000 तक जा सकती है, जिस हिसाब से पिछले 5 सालों में मार्केट लास्ट बिगेस्ट की पोजीशन में चलती नजर आई है, उस हिसाब से देखने को मिल सकती है। कंपनी के बारे में हमने सब कुछ देखा कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ही है, हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनियां। इसके बाद आते हैं इसकी कंप्लीट में देखा जाए तो इसके चार्ट क्या कहती है। इनके चार्ट में देखेंगे लगातार, जो हम चार्ट फिलहाल यहाँ पे रिमाइंड के लेके चलते थे, तो हमने चार्ट लिया इसका बेमेल का, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का। और ये चार्ट में क्या नजर आती है, जहाँ पे मार्केट फिलहाल 4 तारीख को गिरा था, 4 जून को, उसके बाद मार्केट दोबारा अच्छे से मोमेंटल की तरफ कामकाज करती नजर आ रही है। और लगातार जहां भी जिस पीरियड में स्टॉक को देखें, वहां से अच्छी मोमेंटल, कभी भी किसी को ऐसा नहीं महसूस हुआ होगा इस कंपनी को लेकर के, और कभी किसी को पछताना नहीं पड़ा होगा जो मैंने कहा हो मैंने कहीं हाई प्राइस पे स्टॉक ले लिया। ऐसा मुझे लगता है कहीं देखने को नहीं मिलती नजर आएगी, कि लगातार स्टॉक में अच्छी सी पुल बैक देखने को डे बाय डे नजर आती है। इसके पीयर्स कंपनी में देखें तो क्या निकल के आती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जब हमने स्टडी किया हुआ है, इसके बाद भारत डायनामिक्स, वेमल्स, इसका तीसरे नंबर पे आता है। और यदि तीनों कंपनी का, इन 7 टोटल 9 कंपनी का मीडियम्स देखा जाए पी की तरफ, तो 95 कहता है। और इसके हिसाब से देखा है तो ये इसका भी पोटेंशियल बनती है, इसका भी पोटेंशियल बनती है, इसका। तो गवर्नमेंट की जितनी कंपनियां ना, उसका पोटेंशियल तो लगातार बनती है। प्राइवेट सेक्टर कंपनियां तो और भी आगे निकल चुकी है गवर्नमेंट से, जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर साबित हुआ है, खासकर स्टॉक मार्केट की प्राइस को लेकर के। चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और लेटेस्ट वीडियो जहाँ पे हम फंडामेंटली से लेकर के टेक्निकल ट्रेंड तक की बातें करने का प्रयास करते हैं, जो कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं, विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई एडवाइजरी को लेकर के। जो कंपनियां अलग अलग सेक्टर में कामकाज करती है, चाहे वो डिफेंस हो या फिर चाहे वो मेट्रो और रेल की बात करती हो नज़र हो, इसमें देखा गया लास्ट इनका प्रॉफिट और लॉस में देखा जाए कि सेल्स कितना क्या, इसके बारे में कहती है। इतनी बड़ी बड़ी जो हमने देखा था, इसका सेल्स करीब 1514 करोड़ के आसपास है, क्वार्टरली बढ़ती नजर आती है। ऐसे देखें तो प्रॉफिट के पार्ट में करीब
करोड़ के आसपास आई है, और वो भी लगातार देखेंगे किसी क्वार्टर से हमेशा बढ़ती नजर आती है, लगातार क्वार्टर ऑफ क्वार्टर ग्रोथ नजर आती है। आते हैं ईयरली ग्रोथ की तरफ। ईयरली सेल्स कहता है इसका कंपनी को लेकर के 4,000 करोड़ के आसपास का, और 4,000 करोड़ की ईयरली सेल्स में जो टोटल प्रॉफिट के पार्ट रहा वो पार्ट रहती है 282 करोड़ का, जो कि कहते हैं फर्स्ट ऑफ द टॉप। इसको टॉप में फर्स्ट कह सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाती नजर आती है 2024 के अंदर। एक बार हम सेगमेंट वाइज भी समझने का प्रयास करेंगे किस सेगमेंट से कितना पैसा आता है। तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में लगातार बढ़ती नजर आती है। बोरोइंग्स इनका डेट्स फ्री होती नजर आती है, जहाँ पे बोरोइंग्स कम हो गई। और इसके साथ यदि देखा जाए इसकी फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट में सेम है, उतना ही रहा, ज़्यादा मूवमेंटल नहीं था। और इसमें देखा जाए कि अदर एसेट्स में काफ़ी भी मूवमेंटल देखने को नहीं मिला, सेम एज दूसरे आसपास में चलती नजर आई। अब चलते हैं इसकी तरफ जिसका हम परफॉर्मेंस की तरफ चर्चा करने वाले थे, और वो क्या दर्शाना चाहती है, वो क्या कहना चाहता है। तो परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो परफॉर्मेंस कहती है स्टॉक को लेकर के जो नियर अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो यहाँ पे 23 तक का अपडेट है, जहाँ पे मुझे लगता है कि बीटा वर्जन को टेक्निकल इशू की वजह से नहीं है। यहाँ पे निकल के आती है कि प्रमोटर्स होल्डिंग करीब 54% के आसपास, पब्लिक करीब 45-40% के आसपास की निकल के आती है। इन दोनों आपस में क्या सोचते हैं उसके बारे में देखें। प्रमोटर के अलावा देखते हैं प्रमोटर में, जो कि आज के प्रमोटर पता है गवर्नमेंट है। एफआई की तादाद 9% और डीआई की तादाद सबसे ज़्यादा 17%, 18% के आसपास, जिसमें से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा बुलिश में करीब 8% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कोटक इक्विटी फंड 4% से ज़्यादा, और जैसे देखने को लगा ऐसे प्रूडेंशियल भी 1% से ज़्यादा देखने को मिलती नजर आती है। ऐसे देखें पब्लिक में, तो पब्लिक में यहाँ पे कभी किसी जमाने में मुकुल महावीर अग्रवाल थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखने को नजर नहीं आती। 18% के आसपास की पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलती है पब्लिक के अंदर। और पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है ये हम देखने का प्रयास करेंगे, आखिर पब्लिक में कौन से ऐसे बड़े लोग हैं जो कि इनको टेक ऑफ करके रखे हुए। तो चलिए इसके तरफ चलने का प्रयास करते हैं। और वो कहती है स्टॉक के लेकर के जो कि नॉन में रिटेल कितने कामकाज करते हैं। रिटेल में देखा गया कि इंडिविजुअल जिनके पास 2 लाख और 2 लाख से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं उनकी तादाद करीब करीब 16% के आसपास बनती नजर आती है। 14-15% के आसपास की तादाद है। तो 17-18% में 15% तो कम्प्लीटली रिटेल ही है, जो कि 2 लाख से नीचे और 2 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करके चलती नजर आती है। यहाँ पे पीयर्स को देखेंगे तो पीयर्स में आता है अशोक लीलैंड्स आती है, स्कॉट्स आती है, वीएमएल आती है जो कि हैवी व्हीकल बनाती है स्टैंडअलोन के हिसाब से। यदि कंसुलेट डेटा देखेंगे तो अशोक लीलैंड सबसे बेहतर निकल के आती है, स्कॉट्स जो सेकंड नंबर, वीएमएल जो थर्ड नंबर पे निकल के आती नजर आती है। जिसके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखें या सेल्स की टोटल रेवेन्यू की तरफ देखें। उसके बाद जबकि परफॉर्मेंस की तरफ आंकलन करके देखते हैं तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस एक बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आती है, जो कि बीएमएल में करीब 5 साल में करीब करीब 500-600% का जंप हो चुका है। और नियरी प्राइस देखें तो करीब 3400-3500 जंप हो जाता, एक साल में करीब 217% का जंप कर चुका है। 6 महीने में लगातार जंप का माहौल चलती ही जाती है। इसके एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं इन द क्या कहती है लेटेस्ट इसके साथ। तो कहती है इसके एनुअल डेटा में इनकम सेगमेंट के हिसाब से तो नियरली वाई में 3% का इंक्रीमेंट होती है। नेट प्रॉफिट कितना होता है, करीब करीब 78% का इंक्रीमेंट होता है। इसके बाद देखा जाए तो इनकी बैलेंस शीट में क्या कुछ ऐसा चेंज की बात करें तो क्या निकल के आती है। यहाँ पे देखने को आएगा कैश इक्विवेलेंट में निगेटिव हो जाती है, क्या एसेट्स तो 8% बढ़ती है और डेट जो लायबिलिटी था वो भी करीब 7% के आसपास की। इन दोनों में 1% का डिफरेंस निकल के आती है, जहाँ पे इनकी लायबिलिटी थोड़ा सा कम निकल के नजर आती है, जो कि एसेट्स बढ़ती नजर आती है। तो दोस्तों ये वीडियो हमने बनाया था स्टडी पर्पज़ के लिए, विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई एडवाइस। जो डेटा था इनके वेबसाइट्स के ऊपर, वीएमएल के वेबसाइट्स के ऊपर हमने वही डेटा कैप्चर करने का प्रयास किया था, और वहीं से हमने समझने का प्रयास किया था जो कि एक कंपनी जो कि कंपनी है वीएमएल, और ये अलग अलग सेक्टर में काम करती है, जहाँ की डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस में देखा जाए, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, रेल एंड मेट्रो के अंदर, और बाकी और भी सारे कंपनी पर कामकाज करती है। और कहती है आत्मनिर्भर भारत की क्या देती है, सलाह देती नजर आती है कंपनी की पोटेंशियल, और लगातार चार्ट में हमेशा जंप करती नजर आती है, लगातार चलती नजर आती है। इसका एक नज़र हम सेगमेंट वाइज पे देने का प्रयास करेंगे, सेगमेंट वाइज क्या कहना चाहता है इसके बारे में। तो सेगमेंट वाइज के साथ साथ लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें तो लेटेस्ट अपडेट क्या कहती है कंपनी के बारे में। तो कहती है रिवाइज इन द 3/7 को अपडेट दिया था, इसके पहले इन्होंने ऑडिटेड रिपोर्ट की बात करती है, रिवाइज इंडिपेंडेंट ऑडिटेड रिपोर्ट इन द 23-24 का रिजल्ट जो था वो बेस्ड ऑन द किसके हिसाब से, CAG के हिसाब से उन्होंने अपडेट किया था, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दिया था। 3/7 को अपडेट दिया था। इसके बाद उन्होंने
क्या अपडेट किया, रेगुलेटरी इन्होंने कंप्लायंस सर्टिफिकेट का अपडेट करती नजर आई और कुछ ऐसा अपडेट है फिलहाल यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में देखने को मिला कि डिविडेंड लगातार देती है कंपनी ₹5 के आसपास, क्योंकि स्टॉक प्राइस के हिसाब से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटल देखने को मिला था। फाइनेंशियल सेगमेंट में कहती है इनका सेगमेंट वाइज कुछ होगा तो अच्छी बात है, सेगमेंट पर ऐसा डिटेल देखने को नज़र नहीं आती है, तो ये इसके लिए हमें ऐसा एनुअल ट्रेंडिंग की तरफ देखें तो एनुअल ट्रेंडिंग क्या कहती है, एनुअल ट्रेंडिंग में देखने को मिलती है कि लगातार इसमें 23, 24, 22 में लगातार यहाँ पे कुछ सालों में अच्छी खासी ट्रेंडिंग बनती जाती है, कई बार इसमें गिरावट का माहौल भी देखने को मिलता है। ये इसका एनुअल ट्रेंडिंग और चार्टर्ड और क्वार्टरली ट्रेंडिंग की बात हम कर रहे थे। इसके बाद कुछ और पेयर्स में यहाँ पे देखें पेयर्स का क्या कहना चाहता है, यहाँ पे पेयर्स में देखेंगे तो सबसे पहला आता है एस आता है, सांघवी मूवर आता है। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करने का प्रयास करेंगे आगे चल करके। इस पे हमने एक स्टडी किया हुआ है सांघवी मूवर के ऊपर, एसी के ऊपर सर हमने नहीं एसी के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।